Good morning student. So today we are discuss about our next topic, that is tissue. क्या बेटा टिश्यू. तो फर्स्ट कि सर टिश्यू होता क्या एक्चुअली में, व्हाट आर द टिश्यूज. तो सिंपल, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल. क्या बेटा ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure, function and origin. क्या बेटा and origin are called tissue. क्या कहलाता है बेटा टिश्यू. सिंपल, क्या टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक समूह है जो क्या बेटा सिमिलर है किस में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में एंड ओरिजिन में. आर कॉल्ड टिश्यू. क्या कहलाया बेटा टिश्यू कहलाया. द वर्ड एनिमल टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय चैट. द वर्ड एनिमल टिश्यू coined by Chet, the name of scientist, and the term plant tissue given by Grew. Name of scientist, that is Grew. Study of the tissue is known as histology. क्या बेटा स्टडी ऑफ द tissues are called histology. ठीक है. बायचेट इज नोन एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. कौन बेटा बायचेट इज नोन एज father of histology. Detailed studies of the tissues is known as microscopic anatomy. क्या बेटा डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टिश्यूज, डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यूज is called microscopic anatomy. ठीक है. सबसे पहले क्या बेटा व्हाट इज टिश्यू. तो टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन आर said to be tissue. The word animal tissue is coined by the scientist Baichet. And the term plant tissue is given by scientist Grew, and the study of the tissue is known as histology. क्या कहलाता है बेटा histology. And the Baichet is also known as the father of histology. And detailed study of the tissues are known as microscopic anatomy. क्या कहलाया बेटा microscopic anatomy. ठीक है. Now we are discuss about the type of tissues on the basis of structure and function. Now we are discuss about the type of tissues on the basis of their structure and function. Now we are discuss about the type of tissues. क्या बेटा अपना अगला है टॉपिक है टाइप ऑफ टिश्यूज. Type of tissues on the basis of structure and function. तो बेटा टाइप ऑफ टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन.
तो देयर आर 4 टाइप ऑफ द टिश्यूज। सबसे पहले कौन सा बेटा, इपीथीलियम। कौन सा है, इपीथीलियम टिश्यू। और इस टिश्यू से क्या बनता है, कवरिंग, प्रोटेक्शन देता है, कवरिंग और प्रोटेक्शन इसका मेन काम है। किसका बेटा, एपिथेलियम टिश्यू का। नेक्स्ट, कनेक्टिंग टिश्यू। सेकेंड वन इज कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बेटा, कनेक्टिंग टिश्यू। काम क्या करेगा, कनेक्ट द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कनेक्ट ऑल पार्ट्स of the body, comma, transportation of the substance, transportation of the substance, एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड जो है वो है बेटा मस्कुलर टिश्यू। कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू का काम होता है हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। किसमें बेटा, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। एंड द फोर्थ वन दैट इज, और जो चौथा अपना टिश्यू है वो कौन सा है बेटा, नर्वस टिश्यू। कौन सा है बेटा, नर्वस टिश्यू। और इसका काम है टू जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, तो हम रिपीट इट अगेन। सबसे पहले कौन सा बेटा, इपीथेलियम टिश्यू। कौन सा, इपीथेलियम। इपीथेलियल, इपी मतलब अपॉन और थीलियम मतलब ग्रोथ, मतलब जो दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, सेड टू बी द इपीथेलियल टिश्यूज। मेनली इनका काम क्या है बेटा, कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम रहता है। जैसे सपोज स्किन इज अब type of epithelial tissue that provide the protection from the external environment, correct. Next one is connecting tissue. कौन सा बेटा, connecting tissue, connect the all parts of the body, transportation of the substance like bone, ये also provide the support to the body, body को support भी provide करते हैं। कौन से बेटा, connecting tissue. Bone and blood are the example of connecting tissue. Generally connecting tissue is made up by the two main things, that is fiber and matrix, correct. But blood is a special type of the connecting tissue that have only the matrix. There are carpels and the matrix. The fiber are absent in the blood, correct. Generally bone is also the type of connecting tissue, but it have the fiber, correct. So what is the function of the connecting tissue? That is connect all parts of the body, provide strength to the body, transportation of the substance like oxygen, carbon dioxide, glucose, all things are transported by the blood. Blood and bones are the example of connecting tissue. Now third one is the muscular tissue. Muscular tissue help in the contraction and the locomotion, correct. किसमें बेटा, contraction and locomotion में मदद करते हैं। And the last and the fourth one is that is nervous tissue. कौन सा बेटा, nervous tissue. और what is the function of nervous tissue? To generate and conduct electric impulse. क्या बेटा, to generate and conduct electric impulse. So we are discuss about the all 4 type of the टिश्यूज। दीज आर द एनिमल टिश्यूज। ये सब भी कौन से हैं बेटा, एनिमल टिश्यूज है। कौन से, एनिमल टिश्यूज। कौन कौन सा, एपिथेलियम, कनेक्टिंग, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। नाउ वी आर डिटेल्ड स्टडी द फर्स्ट दैट इज एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा बेटा, एपिथेलियम टिश्यू। अब हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, एपिथेलियम टिश्यू को। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू।
वो भी अपन पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट epithelium is the first tissue that all cells are arranged in uniform manner। क्या बेटा? all cells are arranged in a uniform manner। किसमें बेटा? uniform manner। ठीक है, सभी सेल्स किसमें बेटा? यूनिफॉर्म मैनर में क्या रहती हैं? अरेंज्ड रहती हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या बेटा? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहने का मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इपिथेलियम ग्रोस फर्स्ट। तो सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है बेटा? एपिथेलियम है। कौन सा है? एपिथेलियम है। एंड थर्ड वन इज पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? पावर ऑफ रीजनरेशन present in epithelium tissues। इनके अंदर रीजनरेशन क्या पाई जाती है बेटा? कैपेसिटी पाई जाती है। पावर ऑफ रीजनरेशन इज एब्सेंट और लीस्ट पावर इज फाउंड इन नर्वस टिश्यूज। सबसे कम लीस्ट रीजनरेशन पावर जो पाई जाती है किसमें बेटा? लीस्ट जो रीजनरेशन पावर होती है वो किसमें पाया जाता है बेटा? वो पाया जाता है आपके नर्वस टिश्यू में। किसमें बेटा? नर्वस टिश्यू। किसमें पाया जाता है? नर्वस टिश्यू। अगर नर्वस सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले, समझ में आ रहा है? In the absence of oxygen, nervous tissue is firstly destroyed in the body। अगर विदाउट ऑक्सीजन बॉडी में सबसे पहले डैमेज होने वाली अगर सेल्स हैं तो वो कौन सी है बेटा? नर्व सेल्स हैं। कौन सी है? नर्व सेल्स। बात बराबर है? मतलब विच सेल्स डैमेज फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो आंसर इज नर्व सेल। तो सबसे पहले डैमेज होने वाला सेल कौन सा बेटा? नर्व सेल है। और नर्व सेल से क्या बनता है? नर्वस टिश्यू बनता है। तो सबसे पहले कौन डैमेज होगा? नर्वस टिश्यू। कौन सा होगा बेटा? नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट, द वर्ड इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड। कौन कौन सा बेटा? इपी एंड थीलिया। इपी मीन्स अपॉन एंड थीलिया मीन्स ग्रोथ। जो वर्ड इपिथेलियम जो है कौन सा बेटा? वर्ड इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। द वर्ड इपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। कौन कौन सा बेटा? दैट इज एक कौन? इपी का मीन्स होता है अपॉन। क्या बेटा? अपॉन। और दूसरा बेटा थीलिया। कौन सा? थीलिया, दैट मीन्स ग्रोथ। मतलब ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यूज पे क्या करता है? ग्रोथ करता है, said to be epithelium। क्या कहलाए बेटा? इपिथेलियम। तो इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। इपी मीन्स अपॉन एंड थीलियम मीन्स ग्रोथ। सिंपल। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इपिथेलियम? अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड इपिथेलियम टिश्यू। अब यहां से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। क्या हो गया बेटा? द टिश्यू दैट ग्रोज ऑन अनदर टिश्यूज आर कॉल्ड इपिथेलियम टिश्यूज। तो क्या हो गया अपने पास? नाउ द डेफिनेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यूज, द टिश्यू दैट ग्रोज ऑन अनदर टिश्यूज आर कॉल्ड इपिथेलियम टिश्यूज। तो ये हो गया बेटा द टिश्यूज that
grown on another tissues are called epithelium tissues। क्या कहलाया बेटा? epithelium tissues। ठीक। सेकेंड, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड कैपिलरीज आर अनेबल टू पियर्स दिस टिश्यू, सो ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन इपिथेलियम। तो यहाँ सेल्स के बीच में क्या नहीं होता बेटा? इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता है। क्या नहीं होता? देयर इज अ एब्सेंस ऑफ इंट्रासेल्युलर स्पेस। अब जब इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी बेटा? ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। अब जब ब्लड वेसल्स एब्सेंट होगा तो यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। अब ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन भी क्या होगा बेटा? एब्सेंस होगा। अब जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो इसके लिए न्यूट्रिशन क्या है बेटा? न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन इसमें पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल, ब्लड कंडक्ट द ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। अब जब ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड वेसल्स पॉर्ड नहीं कर पा रही है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द इंट्रासेलुलर स्पेस, दैट्स व्हाई देयर इज अ न्यूट्रिशन इज नॉट अवेलेबल, सो इट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द कनेक्टिंग टिश्यू। किससे प्राप्त करेगा बेटा? ये कनेक्टिंग टिश्यू से प्राप्त करता है। तो जो इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द कनेक्टिंग टिश्यू, या फिर मैं ऐसे बोलूँ, दे टिश्यूज दैट ग्रोन ऑन कनेक्टिंग टिश्यू। मतलब इनका जो बेसमेंट लेयर होती है दैट इज मेड अप बाय द कनेक्टिंग टिश्यू ऑन विच दे आर ग्रोन, जिसके ऊपर ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। बिकॉज इनके अंदर क्या है बेटा? इंट्रासेल्युलर स्पेस का अभाव होता है। अब इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होगा तो देयर इज अ ब्लड वेसल्स नॉट फॉर द सेल एंड देयर ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट। एंड द ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे ग्रो ऑन द कनेक्टिंग टिश्यू एंड दे ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द कनेक्टिंग टिश्यू। अरे किससे न्यूट्रिएंट प्राप्त किया इन्होंने? कनेक्टिंग टिश्यू से। किससे बेटा? कनेक्टिंग टिश्यू से। बिटवीन इपिथेलियम एंड कनेक्टिंग अ थिन नॉन लिविंग a cellular basement membrane is present which is highly permeable. Basement membrane consists of two layers, basal lamina and fibrous lamina। इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में बेटा? इपिथेलियम और दूसरा कौन है? कनेक्टिंग टिश्यू। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, दैट इज मेड अप बाय टू लेयर्स, जो किन दो लेयर से मिलके बनी होती है। कौन कौन सी? बेसल लैमिना और फाइब्रस लैमिना। कौन कौन सा बेटा? एक होता है बेसल लैमिना and the second one is fiber lamina। These two layers are found between the, कहाँ पाए जाएगा ये? Two layers are found between the epithelium। कौन बेटा? epithelium, between epithelium and दूसरा कौन सा है? connecting tissue, between epithelium and connecting tissue। ठीक है, तो आपका किसके बीच में हो गया बेटा? ये इपिथेलियम एंड कनेक्टिंग टिश्यू के बीच में आप बहुत ही थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट इज मेड अप बाय द टू लेयर्स। कौन कौन सी? बेसल लैमिना और दूसरा कौन सा है बेटा? फाइबर लैमिना। जो बेसल लैमिना है टुवर्ड्स द इपिथेलियम, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम सेल्स। अच्छा, जो बेसल लैमिना है ये टुवर्ड्स द इपिथेलियम, किधर की तरफ? टुवर्ड्स द इपिथेलियम। टुवर्ड्स द इपिथेलियम पाई जाती है, जो कि जनरली किसकी बनी रहती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन का बना रहता है। एंड दीज सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा? इपिथेलियम सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? इपिथेलियम सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। ठीक है,
और दूसरा कौन सा है, फाइबर लेमिना, क्या बेटा, फाइब्रस लेमिना टुवर्ड्स द कनेक्टिंग टिश्यू एंड विच इज मेड अप बाय कोलेजन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन इट। ये किधर होता है, टुवर्ड्स द, इट इज फाउंड टुवर्ड्स द कनेक्टिंग टिश्यू, किधर बेटा, कनेक्टिंग टिश्यू, और ये जनरली किसका बना रहता है, इट इज मेड अप बाय द कोलेजन फाइबर, किससे बेटा, कोलेजन फाइबर एंड रेटिकुलेट फाइबर्स। अब इसका एग्जांपल आप समझें, सपोज करो ये आपका कोई टिश्यू है, ठीक है बेटा, ये क्या है, कोई टिश्यू है, और ये मैंने क्या बनाया, दिस द बेसमेंट लेयर, क्या है ये, बेसमेंट लेयर है, ठीक है, और ये मैंने सेल्स बनाई, क्या बनाया बेटा, ये सेल्स है। ठीक है, ये कौन सा बेटा, बेसमेंट लेयर है। अच्छा, बेसमेंट लेयर जो है, अब इसके दो पार्ट बना दिए मैंने, क्या बना दिया बेटा, एक मान लो इसके नीचे तो क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है, कौन है बेटा, कनेक्टिंग टिश्यू है, कौन है, कनेक्टिंग टिश्यू, और ये ऊपर क्या है, ऊपर है एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। तो टुवर्ड्स द एपिथेलियल, जो एपिथेलियल की तरफ होगी वो तो कौन सा होगा आपका, बेसल लैमिला, कौन सा होगा बेटा, बेसल लैमिला, ठीक है। और ये किससे बना है, जनरली इट इज मेड अप बाय ग्लाइकोप्रोटीन, किससे बना है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, जनरली ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट बाय द एपिथेलियल सेल्स। और अगर अपन सेकंड दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है वो किससे बना हुआ है बेटा, फाइब्रस लैमिला, कौन है, फाइब्रस लैमिला, जो कि किधर की तरफ है, आपके कनेक्टिंग टिश्यू की तरफ है, किधर है बेटा, कनेक्टिंग टिश्यू की तरफ है।